Hello dear student. I hope so you are good at home and enjoying the lecture series of physics with SK sir. So आज हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. So what are the topics in previous class we discussed? पॉलीगन ऑफ लॉ वेक्टर एडिशन ये हो गया था. आज जो हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. सो फर्स्ट analytical method of vector addition is about triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition, in which we are talking about the basic concept of triangle law and derivation that is based on the direction as well as magnitude. Okay, तो सबसे पहले बात करते हैं. Let us consider two vectors. दो vectors consider कर लेते हैं. Vectors का मतलब क्या होता है? A type of physical quantity which consists in fixed direction and as well as magnitude. Vector P and vector Q inclined at an angle theta be acting on particle at the same time. ये वेक्टर P है और ये वेक्टर क्या है? Q है. आपका डायग्राम बहुत अच्छे से समझना, मैंने पहले डायग्राम ड्रॉ कर चुका हूं मैं. वेक्टर P and vector Q both are what? Vector, and resultant of this vector P and Q is vector R. सो ओ ए यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर पी को. ए बी लाइन सेगमेंट वेक्टर क्यू को रिप्रेजेंट करता है एंड वेक्टर ओ बी को वेक्टर आर रिप्रेजेंट करता है. इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्ट ए एंड बी राइट एंगल ट्राइंगल बाय एक्सटेंडिंग ओ ए टू ओ एन, बाय एक्सटेंडिंग बी टू एन. व्हेन दे आर मीट ईच अदर इट विल फॉर्म राइट एंगल triangle. So I hope so you understood the basic geometry of triangle law, and wherever we constructed the triangle, let us assume the angle is theta, and the angle between the OB line segment and OA line segment, resultant vector and vector P, that is assumed to be alpha. So let's start with this diagram, particularly one derivation. This is very important. You can take a screenshot also. Okay, now I'm going to start. What we have to find out first? To find out the magnitude of the resultant, ठीक है, resultant vector is vector R. From the point B, this is the point B, draw BN perpendicular to OA. So we draw the BN which is perpendicular to OA, meeting at point N. So this point is N. When produce, so produce is OA को extend किया कहां तक? O से लगाकर N तक. So we assume BAN angle. BAN angle कितना हो गया यहाँ पर? थीटा हो गया. Then from the right angle triangle O and B we have O and B. This is the right angle triangle. आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन क्यों किया? अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो हम कोई सी भी ऐसी ज्योमेट्री या थ्योरम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके हमने क्या बना दिया इसे? राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ वी कैन एबल टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या अप्लाई कर सकते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. ओ बी स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेनियस, ओ एन इज अ बेस एंड बी एन इज अ परपेंडिकुलर. सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर कर दिया. ओ बी स्क्वायर का ओ बी स्क्वायर, ओ एन की जगह हम क्या कर सकते हैं? ओ से लाकर एन की जगह क्या कर सकते हैं? ओ ए प्लस ए एन. सो ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर हो गया प्लस एन बी स्क्वायर. सो दिस इज एन बी स्क्वायर रिमेनिंग सेम. नाउ वी विल अप्लाई हियर द फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. So simply this term is extended here. OB square is equals to OA square plus AN square plus 2OA into AN plus NB square. Now AN square plus NB square is equals to AB square. How it came? Small triangle we are considering, A and B. So hypotenuse is AB. This is your hypotenuse. Base is AN. This is your base, and perpendicular is BN. So this is your BN. By using geometry, now I have to find out the value of AN.
in terms of AB. Okay, so what we have to be use? Cos theta is equals to AN divided by AB. This is theta. Cos theta is equals to base upon hypotenuse. What is the value of base? AN. Hypotenuse is AB. Okay, so AN is equals to AB cos theta. Hopefully you understood till that. Now we are proceeding forward. Okay, you can able to see. Okay, now it's good. So AN is equals to AB cos theta, we got it from triangle ANB. Now what we have to be do? I'm removing it because we need to be see the equations. See, equation number first, second and third. The value of second, AB square, and the value of third, AN is equals to AB cos theta. Put in equation number first. How? OB square का OB square है, OA स्क्वायर का OA स्क्वायर है, जहां पर AN है, ठीक है, जहां पर भी AN है तो देखो समझो ध्यान से, AN और यहां पर क्या है, BN है. तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं. तो यहां पर OA स्क्वायर और यहां क्या लिखा है, 2OA AB cos थीटा. तो जहां पर AN है वहां पर क्या लिख दिया, AB cos थीटा. यस, नाउ यू कैन सी दैट यहां पर OA स्क्वायर का OA स्क्वायर रह गया, AN और ये जो NB स्क्वायर है, तो AN स्क्वायर और NB स्क्वायर दोनों का प्लस किसके बराबर हो गया, AB स्क्वायर. सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दिस AN स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय AB स्क्वायर. ओके, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए. OA का OA रहने दिया, AN किससे रिप्लेस हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड से AB cos थीटा. आई होप सो यू अंडरस्टूड. R स्क्वायर, अब वैल्यू OB की कितनी है यहां पर, R, पुट इट. OA की वैल्यू कितनी है, P. जहां जहां OA है वहां P रख देंगे, जहां जहां AB है वहां Q रख देंगे. cos थीटा का cos थीटा, AB की वैल्यू यहां पर क्या रख दी, Q. अब AB का स्क्वायर है तो Q स्क्वायर हो गया. R स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. द स्क्वायर विल कम इन राइट हैंड साइड. तो जैसे ये स्क्वायर कहां जाएगा, राइट हैंड साइड में आएगा. सो यू कैन सी दैट द अबव एक्सप्रेशन इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन. इसे क्या बोलते हैं, कोसाइन. ये न्यूमेरिकल जब मैं कराऊंगा आपको समझाऊंगा किस टाइप के न्यूमेरिकल यहां पे आते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू बी डू हियर टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स. तो रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन निकालनी है. उसके लिए डायरेक्शन निकालने के लिए हमें यहां पर इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को समझें अच्छे से. फ्रॉम द ट्राइंगल विच राइट एंगल, triangle ONB, ONB, this is a right angle triangle. Okay, not an issue. tan अल्फा, तो ये रहा अल्फा. tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज NB, बेस इज ON. सो ON इज रिप्लेस्ड बाय OA प्लस AN. सो OA प्लस AN. इक्वेशन नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सो परपेंडिकुलर इज NB and hypotenuse is AB from a small triangle. Okay, so this is from triangle ANB and this is from triangle ONB. Okay, so NB is equals to AB sin theta. From equation number 5th and 6th we got value of NB. What is the value of NB? AB sin theta. We put it here. OA value is P, so we put it here P. And now again AN is, already we got it, AN AB cos theta. So AB cos theta we put it here. Now what is the value of AB? Q sin theta. OA P, AB Q, and cos theta is cos theta. So we got it, the value of expression of alpha is equals to tan inverse Q sin theta upon P plus Q cos theta. So it's a very easy derivation. You just remind the geometrical rules. If you're not able to understand, to revise the video you can. Okay, now we are moving towards to the third page. Without wasting your time, you can take the screenshot of this, then we will talk about the special cases and all that. Okay, take it the screenshot. Okay, so now we are moving towards to the last one page.
Here you can see the special cases. Okay, whatever the derivation we done, जो अभी हमने डियर स्टूडेंट डेरिवेशन किया था उसके ऊपर या उसके बेस्ड यहाँ पर कुछ स्पेशल केस है. तो स्पेशल केस डियर स्टूडेंट पहला है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0. अगर थीटा 0 होगा तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा और अल्फा क्या होगा. तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq फॉर्मूला था और कॉस थीटा साथ में आ रहा था, लेकिन थीटा यहाँ पर 0 है एंड यू नो वेरी वेल कॉस 0 कितना होता है 1. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं cos 0 इज इक्वल टू 1. सो cos 0 1 हुआ. सो रिमेनिंग क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बच गया और 1 इंटू समथिंग करो तो वही वापस आएगा. r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो फाइनली फॉर्मूला इज a प्लस बी होल स्क्वायर. So now this square and square root is cancelled. So remaining is p plus q. And this is the maximum value of resultant vector. This is the maximum value of resultant vector. यहां से अब अल्फा निकालना है. अल्फा का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स q sin थीटा p प्लस q cos थीटा था. जहां थीटा वहां 0 0 रखा. यू नो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है और cos 0 की 1 होती है, लेकिन 0 में किसी का भी डिवाइड करें आंसर क्या आता है 0. सो tan इनवर्स 0 का भी आंसर कितना आया 0. जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो यहां पर वेक्टर p किससे ज्यादा होगा, वेक्टर q से ज्यादा होगा. थीटा अगर 90 है, यहां पर थीटा क्या बोल रहे हैं हम लोग 90, तो थीटा इज 90, देन r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 एंड cos 90 इज 0. तो ये पूरी टर्म यहां से लाकर यहां तक 0 हो जाएगी. रिमेनिंग टर्म इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. अल्फा निकाल रहे हैं tan इनवर्स q sin 90, sin 90 1 होता है, p प्लस क्यू cos 90 0 होता है, तो q इंटू 0 0 हो जाएगा, तो क्या रह गया q डिवाइडेड बाई p. सो tan इनवर्स q डिवाइडेड बाई p रह गया व्हेन द केस थीटा इज 90. व्हेन थीटा इज 180, व्हेन थीटा इज 180, सो यू नो दैट cos 180 इज -1. ओके, सो स्क्वायर रूट रिजल्टेंट वेक्टर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos 180, द वैल्यू ऑफ 180 इज माइनस, सो प्लस माइनस माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq and r is equals to square root p minus q का whole square and r is equals to square root p minus q का whole square is equals to p minus q because square and square root is cancelled. And here the resultant vector is minimum. Alpha is equals to tan inverse q sin 180 plus p plus q cos 180. Sin 180 is 0. So again it is 0. But condition is very important. Alpha is 180. When alpha is 180, then vector q is more than vector p. And when alpha is 0, then vector p is more than vector q. This is the analytical method of addition of triangle law. Okay, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा एंड यू एंजॉय द लेक्चर सीरीज ऑफ फिजिक्स विथ मी. एंड एक और जो आने वाले कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.